Dear students, Control Systems course lecture series में lecture 4.2 in which we are going to study the block diagram reduction rules, through which rules we can easily reduce the block diagram. So rule number 1 is associative law. So associative law किस तरीके से apply करेंगे in the block diagram. So in this figure we can easily say that these are two summers, ठीक है, और इन टू समर्स पर डिफरेंट इनपुट्स हैं. हेयर R1 of plus and R2 of minus, so the output here is R1 minus R2, and the next summer here is R3 plus. So the final equation is R1 minus R2 plus R3. तो अब हम क्या करें कि स्वैप कर दें इन दो समर्स को. तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो दो इनपुट्स हैं ये स्वैप हो जाएंगी. दिस विल कम टू दिस पॉइंट, दिस विल कम टू दिस पॉइंट. सो नाउ मेक अ इक्वेशन. सो R1 plus of R3 plus means R1 plus R3, and in this summer we have R2 of minus, so R1 plus R3 minus R2. So हम देख सकते हैं कि these two equations are same. ठीक है. सो यहां पर हमने देखा कि swapping the summers we can find the same equation. अच्छा, अब come to this figure. अब इस ब्लॉक डायग्राम पे आ जाएं. यहां देखें कि R1 of plus, R2 of minus, and now we have a block here. Transfer function G1 block here. ठीक है. So अब क्या होगा? R1 minus R2 into G, this is this part, or second part is R3. So R1 minus R2 G1 plus R3, this is the equation. अब स्वैप करें दिस समर टू हेयर और इस तरीके से इस समर को यहां लेके आए. तो क्या देखते हैं, क्या इक्वेशन सेम आएगी? R1 plus R3 into G1 minus R2. So R1 plus R3 into G1 minus R2. Now look carefully, these two equations are not same. So इसका मतलब ये हुआ कि associative law is applicable to summing points directly connect to each other. यहां हम देखें कि these two summing points are directly connected to each other. लेकिन जैसे ही एक ब्लॉक, ठीक है, यहां पर एंटर हो गया सिस्टम में, तो इसका मतलब यह है कि नाउ एसोसिएटिव लॉ इज नॉट एप्लीकेबल. सो द कंडीशन इज associative law is only applicable where these two summing points are directly connected to each other. So this is the rule number 1. Now let's move to the rule number 2. Blocks in series. तो blocks in series कैसे solve करेंगे? So look at here, R of S into G1. So हम क्या करेंगे? This reference will multiply by G1. तो R of S G1, और इस तरीके से this will multiply by this term. So R of S G1 into G2, और इस तरीके से C of S. तो हमारे पास क्या बनेगा? ये इक्वेशन क्या बनेगी? R of S into G1 into G2 into G3. तो हम ये कह सकते हैं कि आउटपुट C of S is equal to R of S into G1 G2 G3, as we know that the transfer function is what we have. This is R of S, this is C of S, and this is the block of a single block diagram. So means for the blocks in series we have to multiply the blocks to each other. Let's come to this figure. अब इस ब्लॉक डायग्राम की पिक्चर पे आते हैं. हम देखे हैं कि दिस G1 एंड G2 एक दूसरे के साथ हैं, बट देयर इज अ पॉइंट हेयर. ठीक है. सो दिस मीन्स दिस इज अ टेक ऑफ पॉइंट, और आफ्टर दैट वी हैव अनदर ब्लॉक ऑफ G3. तो इसका मतलब ये हुआ कि दीज
all three blocks are not in series, but only these two blocks are in series, and this is a takeoff point. So this means we have to only consider these two blocks in series. तो यहां क्या होगा, G1 into G2, ठीक है, और ये टेक ऑफ पॉइंट आ गया और इसके साथ ये G3 आ गया। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए फर्दर रूल्स अप्लाई होगा कि इस टेक ऑफ पॉइंट को मूव कर दिया जाए या तो अहेड ऑफ दिस G3 ब्लॉक या बिहाइंड ऑफ दिस G1 G2 ब्लॉक। तो इसका रूल जो है वो टेक ऑफ पॉइंट को शिफ्ट करने का कैसे होगा वो भी देखते हैं। तो रूल 2 जो है 4 blocks in series. Now come to the rule 3, that one is blocks in parallel. तो इस पिक्चर को देखते हैं पहली को। दिस इज द इनपुट, ठीक है, जो कि तीनों ब्लॉक्स पर जा रही है, गोइंग टू दीज 3 blocks G1 G2 G3. So we can easily write G1 R of S या R of S G1, R of S G2, R of S G3. You have to check the signs also when making an equation. जब आप इक्वेशन बनाएंगे तो ज़हन में रखेंगे कि साइंस जरूर चेक करेंगे, विदाउट दी साइंस इक्वेशन विल बी इनकरेक्ट। तो अब हम सी ऑफ एस निकालते हैं। सो सी ऑफ एस इज इक्वल टू, लेट्स कम टू दिस वन, आर ऑफ एस जी ओ वन माइनस, तो दिस इज माइनस आर ऑफ एस जी वन, next plus R of S G2, this is plus, next is also plus, so R of S G3. So minus R of S G1 plus R of S G2 plus R of S G3, तो ये हो जाएगी R of S into G2 plus G3 minus G1. So final form of this block diagram is R of S into G2 plus G3 minus G1 into C of S. So इस पैरेलल फॉर्म को इस तरीके से रिड्यूस करके सिंगल ब्लॉक में ले आए हैं। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, क्या ये पैरेलल पिक्चर है? सो इज दिस अरेंजमेंट इज अ पैरेलल वन? क्या आपको लगता है कि ये अरेंजमेंट पैरेलल है? जी, तो दिस इज नॉट अ पैरेलल अरेंजमेंट। पैरेलल अरेंजमेंट के लिए द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द साइन ऑफ द एरो मूव्स टुवर्ड्स द आउटपुट। हम देखें कि एज दिस साइन इज मूविंग टुवर्ड्स सी ऑफ एस, बट दिस साइन इज नॉट मूविंग टुवर्ड्स सी ऑफ एस. This is a feedback signal which are going to input. और for the signal to be parallel, arrangement क्या होगी वो भी देख लें कि this is a forward path, so this means this signal will have the direction to this path. अगर सिग्नल की डायरेक्शन इस पाथ पे है तो मीन्स देन दिस इज अ पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन। लुक एट दिस कॉन्फ़िगरेशन कि हम देख रहे हैं कि जो सिग्नल्स हैं वो मूविंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, ऑल द सिग्नल्स, सो मीन्स these are parallel configuration. So this is the difference between the parallel one and the feedback one. Now rule number 4, shifting a summing point behind the block. अच्छा, shifting a summing point behind the block करने के लिए arrangement क्या करनी पड़ेगी, इसकी थ्योरी यहाँ लिखी हुई है और इसको समझना भी जरूरी है। की पॉइंट ये है कि the output remains same while shifting a summing point. So this is the basic configuration in which R will multiply by this G and this is the another input of Y. So what is the C of S? C of S is equal to R of G plus Y. Now we are going to move, ठीक है, this summing point, ठीक है, to behind the block. इस summing point को behind the block लेके आते हैं और फिर देखते हैं कि हमें क्या चीज ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है, आउटपुट सेम रखने के लिए। ओके, लेट्स कम टू दिस कॉन्फ़िगरेशन।
So when we move this summer behind there, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये कहते हैं कि हमें इस सिस्टम को इस सिस्टम के इक्वल कैसे करना है और क्या चीज ऐड करनी है। तो हम एक न्यू इनपुट x ऐड करते हैं यहां पर, और अब हमारे पास जो इस कॉन्फ़िगरेशन में r प्लस एक्स एक नई इनपुट आ जाती है आउटपुट के साथ। ठीक है, तो अब दोनों के आउटपुट को कंपेयर करते हैं। तो यहां पर क्या है, सी ऑफ एस इज इक्वल टू आर प्लस एक्स इंटू जी। ठीक है, तो अब दोनों आउटपुट्स को अगर हम इक्वल करें, दोनों आउटपुट्स को इक्वल करें, तो यहां पर आर ऑफ जी प्लस एक्स ऑफ जी इज इक्वल टू दिस आउटपुट आर ऑफ जी प्लस वाई। ठीक है, दिस आउटपुट इज इक्वल टू दिस आउटपुट, so r of g plus x of g is equal to r of g plus y, so we are going to cancel these two terms, so means x of g is equal to y. so अब क्या करना पड़ेगा, x के लिए क्या करना पड़ेगा, x is equal to y upon g। इसका मतलब ये हुआ x की जगह पर अब हमें क्या चीज ऐड करनी पड़ेगी, x is equal to y upon g means so y signal must be multiplied by 1 upon g block to keep the output same। तो आप गौर करें कि r और r प्लस वाई अपॉन जी, मतलब 1 अपॉन जी को मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ, तो हम ये कह सकते हैं कि देखें आउटपुट जो है वो सेम है। तो सी ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ जी प्लस वाई और सी ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ जी प्लस वाई। सो व्हेन शिफ्टिंग अ समिंग पॉइंट बिहाइंड द ब्लॉक की कंडीशन आ जाती है, तो याद रखिएगा कि उसके दरमियान में जो भी ब्लॉक आ रहा होगा शिफ्टिंग के इन्फ्लुएंस पर, उसको डिवाइड करके अटैच किया जाएगा, जस्ट लाइक दिस वन 1 अपॉन जी। सो x is equal to y upon g, signal y must be multiplied by this 1 upon g to keep the output same। तो ये 1 upon g को मल्टीप्लाई करवाया, तो हम देख रहे हैं कि r of g plus y आउटपुट सेम आ रही है। नाउ लेट्स मूव टू द रूल नंबर 5 इन विच शिफ्टिंग अ समिंग पॉइंट बियॉन्ड द ब्लॉक। अब इस समिंग पॉइंट को बियॉन्ड द ब्लॉक ले जाएंगे, आगे ले जाएं, तो क्या होगा, और r प्लस वाई, ठीक है, और इंटू जी, तो c इज इक्वल टू आर प्लस वाई जी। तो जैसे ही समिंग पॉइंट को बियॉन्ड द ब्लॉक ले गए हैं, तो अब यहां की जो आउटपुट आती है वो आती है c इज इक्वल टू आर जी प्लस वाई जी। ठीक है, तो अब दोनों आउटपुट्स को अगर सेम रखें, इक्वल करें और फिर देखें क्या चीज ऐड होगी, तो r ऑफ g प्लस एक्स, ठीक है, यहां से, और r ऑफ g प्लस वाई जी। तो आउटपुट इक्वेशन में, सो दिस इज आर जी प्लस वाई जी, तो हमारे पास ये इक्वेशन यहां पर आ रही है, और आर जी प्लस एक्स इज दिस आउटपुट। सो देयर इज अ मिस्टेक हेयर, सो दिस इज नॉट अ वाई जी हेयर बिकॉज दिस आउटपुट इज आर जी प्लस एक्स। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू टेक दिस आउटपुट हेयर। तो हमारे पास दोनों आउटपुट्स क्या होंगी, आर जी प्लस एक्स इज इक्वल टू आर जी प्लस वाई जी। So if we cut these two terms, so we have x is equal to yg। so यहां से हमें अंदाजा होता है कि हमें x के साथ, जब x की वैल्यू के साथ और y की इनपुट के साथ g को मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो याद रखिएगा कि जब भी शिफ्टिंग अ समिंग पॉइंट बियॉन्ड द ब्लॉक होगा, so we have to multiply this g block with this y to keep the output same। तो हम देखते हैं यहां पर c is equal to आर जी प्लस वाई जी, मतलब r plus yg which is equal to these two terms। ठीक है, तो when shifting a summing point beyond the block, we have to add the block which are going to influence where this summing point is going ahead। जो कोई भी ब्लॉक हो सकता है, just like g1 2 3 4 5 h1, कोई भी हो सकता है, लेकिन अंडर इन्फ्लुएंस होगा और उसी ब्लॉक को जो है वो मल्टीप्लाई किया जाएगा with that of input। So this is a concept of rule 5। Now let's move to the rule 6। तो रूल 6 में ये है कि शिफ्टिंग अ टेक ऑफ पॉइंट बिहाइंड द ब्लॉक। अब ये होगा कि अगर टेक ऑफ पॉइंट आ जाता है तो और उसको
मूव करते हैं behind the block. In this configuration, this is R, RG, this is Y. So output is C is equal to RG plus Y. And we are going to move this point here. तो this point here यहाँ move किया तो हमारे पास यहाँ पर C is equal to RG. और जब दोनों को इक्वल करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जस्ट लाइक द प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन, हमें G के ब्लॉक को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, टू कीप द आउटपुट सेम. तो यहां पर ध्यान में रखिएगा कि व्हेन शिफ्टिंग अ टेक ऑफ पॉइंट बिहाइंड द ब्लॉक वी हैव टू ऐड दिस G ब्लॉक, ठीक है, ओनली G ब्लॉक टू दैट ऑफ द जो भी इन्फ्लुएंस में ब्लॉक आ रहा है उसके साथ. सो हियर Y पर वी हैव टू मल्टीप्लाई अ ब्लॉक G, ठीक है, टू कीप द आउटपुट सेम. नाउ लेट्स मूव टू द रूल नंबर 7. सो रूल नंबर 7 में when shifting a take off point beyond the block, कि जब टेक ऑफ पॉइंट को बियॉन्ड द ब्लॉक लेके आएंगे तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगी? जस्ट लाइक दिस वन हेयर, यहां पर y इज इक्वल टू r है, दिस इज द G ब्लॉक एंड C इज इक्वल टू RG. एंड व्हेन वी आर गोइंग टू मूव दिस टेक ऑफ पॉइंट अहेड ऑफ द ब्लॉक, तो ध्यान में रखिएगा कि फॉर द आउटपुट टू बी सेम वी हैव टू मल्टीप्लाई 1 अपॉन G ब्लॉक, ठीक है, ताकि आउटपुट सेम रहे. तो y इज इक्वल टू RG इंटू 1 अपॉन G इज इक्वल टू R. तो याद रखिए, in rule number 7, while shifting a takeoff point beyond the block, we have to add the block of 1 upon G. And यहाँ पर अगर हम देखें तो रूल नंबर 7 के बाद जब हमें माइनर फीडबैक लूप को रिमूव करना हो, मींस अ क्लोज लूप सिस्टम, अ स्मॉल क्लोज लूप सिस्टम को रिमूव करना हो, तो हमें ट्रांसफर फंक्शन का जो क्लोज लूप स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन का फार्मूला था जिसमें था G1 अपॉन 1 प्लस माइनस G1 H1, वो हमें यूज करना पड़ेगा. और अगर यूनिटी फीडबैक लूप आ जाए, मींस वी डोंट हैव दिस H1 ब्लॉक, मींस अगर हमारे पास ये H1 ब्लॉक नहीं है तो दिस मींस वी हैव अ यूनिटी फीडबैक. सो अकॉर्डिंग टू द यूनिटी फीडबैक लूप ट्रांसफर फंक्शन, द ट्रांसफर फंक्शन विल बी इक्वल टू G1 अपॉन 1 प्लस माइनस G1. तो ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखिएगा. तो ये तमाम रूल्स और ये दोनों माइनर फीडबैक लूप और यूनिटी फीडबैक लूप को इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन जो है उनको रिड्यूस किया जा सकता है. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम देखेंगे किस तरीके से एग्जांपल्स में हम ब्लॉक डायग्राम्स को रिड्यूस करते हैं. थैंक यू.